Now, hello, hi, good morning, good evening, and good afternoon. So, anytime, whenever you are watching my lecture, that is particular time wish for you. Fine. So, the most important thing, that's very important, circuit I am going to discuss for BTech students. This is for BTech students. BTech students. This is very important, the topic and analysis. Try to learn each and every step carefully. And if you have got any doubt after that, then you may leave a comment in comment section. Okay, or you can ask whatever the thing you want in comment section, comment box. Okay, so be free, relax, and try to learn the things. I use every basic concept whatever you have gone through till date in your engineering, right? So it's very simple thing, and I have, I am going to try to make it easier for you. It will be easier, very easier for you, right? So now, this is our circuit. This is very important circuit. This is a resistor and inductor, and it is connected with a capacitor and a supply, AC supply, and this V is equal to Vm sine omega t volt. Fine. This is your capacitor. This is R and L. So we know that this is a coil. Fine. This is a coil. We all very well know that this is the coil. So there is a coil, and across it we have connected a capacitor, right? So we have connected a capacitor, right? So now we have to analyze and we have to find out the resonant frequency first, and the maximum and minimum value of the current or impedance, whatever. Fine. So we have to calculate current at resonance, resonant frequency, impedance of the circuit. So everything we are going to calculate. So be very careful and pay your attention here, right? So now this is AC voltage. So we can take its RMS value. So VRMS will be equal to Vm by root 2, and this is angle 0 to first, because this is maximum value, so VRMS have taken. Suppose current I is flowing, it starts flowing from this point, and this is IC and this is IL. Okay? Fine. So this IL is going in the coil, and this is IC is going in capacitor. Right? So what we can write here? First, let ZL is equal to impedance of the coil. Impedance of the coil. Right? So ZL को हम लिख सकते हैं R plus J omega L, and omega is its frequency. Omega is its frequency minded. So R plus J omega L. So what we can write here? Mod of ZL is equal to under root R square plus omega L square. This is mod of ZL. Fine. And what is the angle? Angle is phi L. So phi L will be equal to tan inverse omega L by R. Omega L by R. Right? So now we can write ZL is equal to mod of ZL and angle phi L. This is the complex representation of your impedance, right? Fine. So now this is current flowing. This is the supply current, and this supply voltage. This supply current. So what will be I? I will be the phasor sum of IC plus IL. Mind it. This is this is AC circuit. AC circuit. So we will take here phasor sum, right? So this is our phasor sum. We can write here equation number 1. Fine. Now, step by step we are moving. We are not going. We need not to go in hurry.
and we will move steadily, slow and steady. Okay. Now, so this is the representation of complete, your current. Complete impedance. Now, we can draw the impedance angle also. So what we have learned, this is your phi L, this is R, and angle is 90 degree, and this is omega L, right? So this is phi L, fine. This is phi L, this is R, and this is omega L, right? So this is Z, and Z is equal to what? R square plus omega L whole square. This is your ZL. This is ZL. Right? So ZL is the impedance of the coil. We have already assumed. So what is the value of sin phi and cos phi? So we have calculated tan phi. So tan phi is equal to omega L by R. We have known. So we can write here sin phi. Sin phi will be equal to, what will be? Sin phi is height upon hypotenuse. So omega L divided by ZL, and cos phi L, what is cos phi L? Base upon hypotenuse, R divided by ZL. So you have to keep in mind. So nothing important till this moment. Fine. Now what we have to do next? So next we have to move for the current, right? Current. So since I is the phasor sum, this is supply current going through. This is the capacitor current, this is capacitor current, and this is the coil current. This current is flowing in the coil, right? So phasor sum of IC and IL, right? So now, what will be the value of IC? What will be the value of IC? IC is equal to Vm by root 2 and R. What is R? XL. This is XC, and XC is equal to what? XC is equal to 1 by j omega C. So XC, this is ohm, right now? XC is equal to 1 upon ohm. So we can write minus j by omega C, and here we can write XC is equal to 1 upon omega C, and angle is minus 90 degree. I hope I am correct. So XC is equal to 1 by omega C, and angle is minus 90 degree ohm. Fine. So it is XC. So XC and XL we have calculated. So what will be? So we can write here. So XC we have calculated. So this is Vm, and what is the angle of this? Angle 0 degree. So Vm by root 2 angle 0 degree, and XC is what? XC is 1 by omega C magnitude, and its angle is minus 90 degree. So we have Vm omega C and divided by root 2, and angle is plus 90 degree. This is shifting upwards in numerator, so becoming positive. This is ampere. This is what? This is IC. Okay. I hope it's clear up to this point. Now, so what will be IL? These two are in parallel. How I have calculated? Because current is being distributed, so these two are in parallel. So in parallel voltage is same. So IC is equal to V divided by 1 upon XC, and this IL will be equal to V divided by R plus j omega, because parallel में voltage हमारा same होता है. So we can write here Vm angle 0 degree and divided by root 2, right? And this is ZL. ZL हम लिख देते हैं ZL. ठीक है? So now we will take the complex form of ZL. This is okay. So this we can write Vm angle 0 degree and divided by root 2. Here it is ZL magnitude and angle is phi L. Fine. So what we are getting here, Vm by root 2 ZL, and angle is 0 minus phi L. Right? So this is the current. Now, half of the battle we have won. जीत गए, आधा बैटल जीत गए. जहां इसका फेजर डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, whole of the battle we have won. Okay. Now, what we can write here?
resonance, this is resonance and for BTech students, for BTech electrical. Now अब हमारे पास क्या आ गया, I भी आ गया, IL भी आ गया, IC भी आ गया. अब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इसी फेजर डायग्राम से सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे. ओके, सो फेजर डायग्राम सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं. इससे कंसर्न सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें वही फेजर डायग्राम दे देगा. ओके ओके, सो नाउ फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं V रेफरेंस एंड दैट इज एट एंगल ऑफ 0 डिग्री. सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, दिस इज V, राइट. सो दिस V Vm बाय √2 और ये आपकी सप्लाई वोल्टेज है. दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज, वो भी किसकी क्या है, RMS वैल्यू है. ये आपने ले लिया, थोड़ा सा बड़ा सा बना दीजिए, ये आपका 0. नाउ IC current, this I is the phasor sum of IC and IL, right? So what is IC? IC is the phasor sum of this one. ठीक है, तो हम IC की अगर हम बात करें तो IC की एंगल कितनी है, 90 डिग्री. So this is our IC. This is our IC, right? At angle of 90 degree and this is IC. और IC की वैल्यू कितनी है भाई? What is the value of IC? So IC की वैल्यू है Vm ओमेगा C बाई √2. ठीक है, ये आपका IC है, 90 डिग्री पर आ गया. IL की बात कीजिए, IL कितना है, एंगल -5 डिग्री होगा. यहाँ पर क्या होगा, Vm बाई √2 ZL और एंगल कितनी होगी, -5L. ठीक है, सो -5L का मतलब कि ये आपका IL यानी कि लैग करेगा. सो लैग करेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, और लीड करेगा यानी कि पॉजिटिव थीटा है वहां और नेगेटिव थीटा यहाँ. तो क्लॉकवाइज पे आपने क्या ले लिया, दिस इज योर 5L. यहाँ आपने 5L ले लिया. ठीक है, जब आपने 5L लिया तो अब इसको यहाँ से मिला दीजिए. ये आपने यहाँ से मिला दिया और ये थोड़ा सा इसकी नेगेटिव पार्ट खींच लीजिए और ये आपने यहाँ से मिला दिया, राइट. सो दिस इज नथिंग बट IL. ये आपका IL है और इस IL की वैल्यू कितनी है, सो Vm बाई √2 ZL. ठीक है, अब आइए नाउ, सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर. अगर हम यहाँ देखें तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, इस IL का, तो IL x कंपोनेंट होगा यहाँ पर IL cos phi L होगा. इस IL का x कंपोनेंट यहाँ पर होगा, ये x एक्सिस पर, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक, फाइन. और ये कितना एंगल होगा, ये हमारा होगा IL sin phi, IL sin phi. ठीक है, ये आपके पास आ गया. इसका आपने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ले लिया आपने, यानी कि 0 डिग्री और 90 डिग्री. ठीक है, सो नाउ अब हम बात करते हैं IL cos phi L. I hope it is clear and up to this point everything must be clear. I hope. So now अब हमारे को क्या मिला, I is equal to IC plus IL. ठीक है, सो IC की वैल्यू आपको कितनी आई, आपकी IC की वैल्यू है Vm ओमेगा C बाई √2 एंड एंगल 90 डिग्री एंड IL आपकी आई है Vm बाई √2 ZL और ZL की वैल्यू कितनी हमारी, तो ZL इज √R² प्लस L². ठीक है, ZL और इसकी एंगल है -5, राइट. सो नाउ दिस I सप्लाई करंट, अब इसको हम क्या करेंगे, we are going to break in two components, real part and imaginary part. So this is cos 90 degree, so this is 0 and plus j Vm omega C by √2 and this is sin 90 degree and plus Vm by √2 ZL cos phi L and minus j sin phi L. अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे. सो व्हेन वी आर कीपिंग अपार्ट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, सो जब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम यूज करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो हमारे को क्या मिलेगा, Vm बाई √2 ZL cos phi L, दिस इज आवर रियल पार्ट एंड प्लस j Vm ओमेगा C बाई √2 एंड sin 90 इज 1 into 1. ठीक है, and minus Vm by √2 ZL and this is
sin phi l. So we are getting real part and imaginary part of this current. अब आइए, so वोल्टेज और करंट, ये वाला करंट अगर इसके साथ इन फेज, सॉरी इनका रिजल्टेंट करंट, तो इनका रिजल्टेंट करंट अगर हमको लेना हो तो इनका रिजल्टेंट करंट कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है ना, इन दोनों इनका रिजल्टेंट करंट ऐसे, अगर हम इनका रिजल्टेंट करंट लें तो ये रिजल्टेंट करंट हमारा इस एक्सिस पे जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम उसकी भी बात नहीं करते, नहीं बात करते उसकी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे सप्लाई करंट है, अब इस सप्लाई करंट को इस वोल्टेज के साथ सेम फेज में होना है तो रेजोनेंस आ जाएगा। रेजोनेंस की कंडीशन क्या कहती है, हम अब आगे यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे दो डेटा हम लेंगे जरा सा, एंड साइन फाई एल इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई जेड एल लिखेंगे, और एक डेटा हम रखेंगे कॉस फाई एल इज इक्वल टू आर बाई जेड एल, दो चीजें रखेंगे और बाकी सब चीज को हम रैप कर देंगे, ठीक है। नाउ आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। Okay, so I hope it is visible. Now, so what we are doing here, so this is I we are getting here. अब आइए रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन कहता है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या कहता है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस व्हाट इज, क्या कहता है, it is the frequency, it is the frequency, okay, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की पहले हम बात कर लें, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सो इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच ये फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो ओमेगा इज इक्वल टू नाउ ओमेगा नॉट हो जाएगा, एट विच V and I are in same phase, are in same phase, ठीक है। That is the reactive part or imaginary part of I is equal to 0. This is the condition, यानी कि ये, अब हम ऐसे ही बात करते हैं, रेजोनेंस इज अ फिनोमेना, ऐसे भी लिखते हैं हम इसे, रेजोनेंस इज अ फिनोमेना वेयर V and I are in same phase, ठीक है, सेम फेज में, तो V की फेज क्या है 0 डिग्री, तो इसका मतलब कि I की फेज भी 0 डिग्री होनी चाहिए, इसकी भी 0 डिग्री होनी चाहिए, और इसकी फेज 0 डिग्री कब होगी, जब आपका ये टर्म 0 होगा, ठीक है। सो ये टर्म जब 0 हो जाएगा तो V और I दोनों सेम फेज में आ जाएंगे, दोनों के पास सिर्फ रियल पार्ट बचेगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं बचेगा। इसलिए मैंने लिख दिया कि रेजोनेंस कंडीशन में करंट की, वोल्टेज तो ऑलरेडी है ही, लेकिन करंट की भी रिएक्टिव पार्ट जो होगी या इमेजिनरी पार्ट जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो इस करंट की जब रिएक्टिव पार्ट को 0 कर दोगे आप, तो V और I बोथ आर इन सेम फेज, फाइन, दिस इज वेरी सिंपल, राइट। तो हम इसको 0 कर दें, तो क्या लिखेंगे हम, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी हमारी, ठीक है, इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या लिखेंगे, इसको हम 0 करना चाहते हैं, क्या लिखेंगे, Vm बाई रूट टू ओमेगा नॉट C माइनस Vm बाई रूट टू ZL and sin phi L is equal to 0, right? So अब क्या लिख सकते हैं, और Vm by root 2 omega naught C is equal to Vm by root 2 ZL sin phi. Fine, okay? So now Vm by root 2 and Vm by root 2 gets cancelled. So this is omega naught C is equal to 1 by ZL, right? Fine, 1 by ZL. Now next we have to write here what is sin phi L. So sin phi L is nothing but omega L by ZL, omega L by ZL. So this is omega not L by ZL. Sin phi L is, since यहाँ लिखेंगे हम, since sin phi L is equal to omega not
ओमेगा नॉट एल बाई जेड, ये हमने लिख लिया। ओमेगा एंड ओमेगा गेट्स कैंसल्ड, राइट। तो हम क्या मिलेगा हमको, ZL square is equal to L by C. This implies that ZL is equal to under root L by C ohm. And if this is the condition for resonance, this is a condition for resonance. Condition for resonance. यानी कि रेजोनेंस कंडीशन पर जो आपकी कॉइल की इंपेडेंस होगी दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ L by C. फाइन, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो या यहाँ तक अगर कोई बात हो तो आप बताएं। यहाँ तक मैं नहीं समझता कि यहाँ तक कोई भी डाउट होनी चाहिए। फाइन, ओके। सो नाउ अब हम इसके बाद आप यहाँ देख लीजिए, और इसके बाद हम अब आगे मूव करेंगे और फिर हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को, राइट। कि हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए, ये हमारा आ गया, ठीक। अब हम बात करते हैं इधर, ये मैं रब कर सकता हूं, ये रब कर दूं, मैं ये रब कर देता हूं। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है, अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है क्या, यहाँ पर हमें कैलकुलेट ये देखना होगा कि हमारी जो वैल्यू है ये Z, अब हमारे को कंडीशन मिल गया, अब हमारे को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए, एंड दैट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट कैसे मिलेगा, अब ये सोचना है। आइए यहाँ पर, यहाँ देखिए, सिंस ZL इज इक्वल टू अंडर रूट L by C ओम, फाइन, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। नाउ ZL की वैल्यू क्या थी हमारी, तो ZL वाज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट L स्क्वायर, ये लिखेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ZL जो होगा, ZL इज इक्वल टू R प्लस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट L स्क्वायर एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, यानी कि अब हमारी ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो हम लिखेंगे ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा नॉट से, so this will be equal to under root L by C, squaring both sides, squaring both sides we get क्या मिलेगा आपको, R square plus omega naught L square is equal to L by C, so this is equal to omega naught L square is equal to LC minus R square, right? So now this is omega naught L square and this is 1 by L by C minus R square. So omega naught square is equal to L by L square C minus R square by L square, right? So omega naught is equal to under root L and L gets cancelled, right? So this is 1 by LC minus R square by L square, and this is your resonant frequency, resonant frequency, right? This is your resonant frequency, रेडियन पर सेकेंड, राइट। अगर हम फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में लेना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 पाई अंडर रूट 1 by LC minus R square by L square, and this is nothing but hertz, ठीक है। So this is your resonant frequency. I hope up to this point it's very much clear, right? अब हम आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए, एक कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको LC ऑसिलेशन के बारे में अक्सर पूछा जाता है आपसे। I hope everything is clear. Yes, ठीक है। So आपको LC के बारे में पूछा जाता है यहाँ पर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया जाए कि कभी आपको सर्किट दे दी गई इसकी, ये L और ये C, अब इससे अभी आपसे पूछ दिया गया कि बताओ इसकी ओमेगा नॉट कितनी होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, LC ऑसिलेशन बोलते हैं इसको। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक नोट में लिख लीजिए पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इफ R is very small, that is R is equal to 0. So what we can write? So F will be equal to 1/2 pi under root 1 by LC. So क्या होगा, R की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा ओमेगा, ठीक है, दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, तब उस कंडीशन में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी और ओमेगा नॉट कितनी हो जाएगी, 1/√LC रेडियन पर सेकेंड, ये आ जाएगा। फाइन, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट। दिस इज वेरी, फेजर डायग्राम को आपने एनालाइज कर लिया, आपने आपकी सारी चीजें आसान हो गई, और मैं समझता हूं कि यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं करंट की, जिस करंट से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, सप्लाई करंट एट रेजोनेंस। राइट, तो हम लिखेंगे कि नाउ एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ I will be equal to क्या होगा, IL cos phi L, क्योंकि अब क्या होगा, अब जब आपने ये फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था और ये आपका IC था और ये आपका था IL sin phi L, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट से दोनों ने कैंसिल कर दिया, तो ये तो आपका खत्म हो गया। अब क्या बचा, अब ये आपका IL बचा और IL का सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा cos phi L, जो कि आपका इस फेज में रहेगा और वो I के साथ आपकी एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इस कहने का मतलब कि IL cos phi L जो है आपका, that is nothing but the part of real part of I, that is real part of I, यानी कि I रियल, ऐसे लिख लीजिए, रियल पार्ट ऑफ I इज इक्वल टू IL cos phi L इज द current at resonance, the current at resonance in the circuit, ठीक है, अब बात करते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IL की वैल्यू कितनी है। सो हम I की बात करते हैं तो IL की हम वैल्यू लिखते हैं। IL की वैल्यू आपने अभी बताया था कि दिस इज Vm/√2 ZL, if I am not mistaken this is the value IL is equal to Vm/√2 ZL, आप देख लीजिएगा पीछे, Im/√2 ZL। ठीक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos phi L, cos phi L की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है एंड दैट इज R/Z, cos phi L की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है R/ZL, ये भी आप देख लीजिएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो दिस इज I/ZL। फाइन, सो दिस इज द करंट एट रेजोनेंस। ओके, नाउ अब यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर कुछ और आप ऐड ऑन कर सकते हैं क्या, इस कंडीशन में आप कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं, बोलिए। यस ऐड ऑन कर सकते हैं। एट रेजोनेंस ZL इज इक्वल टू L/C, ZL स्क्वायर इक्वल टू L/C, सो I इज इक्वल टू Vm/√2 और ये आपका ZL स्क्वायर है एंड दिस इज R, एम्पियर, दिस इज द यूनिट एम्पियर इनटू R। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, Vm/√2, ठीक है, और ZL के जगह पर हम ZL स्क्वायर जगह पर क्या लिख सकते हैं, L/C, और Vm/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, Vrms लिख सकते हैं, Vrms है ना, एंड Vrms इज इक्वल टू Vm/√2, ठीक है ना, Vm/√2 हम लिख दिया क्योंकि Vrms इज इक्वल टू Vm/√2, ये आपको मालूम ही होगा, Vrms इज इक्वल टू Vm/√2 वोल्ट। ठीक, ऑलरेडी यू नो इट। फाइन, नाउ सो Vm/√2 Vm, दिस इज L/C, राइट, और एक टर्म आपका यहां बचा R एंड दिस इज इक्वल टू R। फाइन, बोलिए। सो नाउ अब हम अगर इसको हम रब कर दें, ये वाला पोर्शन अगर हम रब कर दें तो हमारे को करंट क्या मिलेगा, सबसे पहले तो हम करंट की बात करते हैं भाई। सो करंट हमारे को मिला I एट रेजोनेंस, क्या मिलेगा हमको करंट, सो I एट रेजोनेंस मिलेगा हमको Vrms
डिवाइडेड बाय L बाई आर सी, है ना। इस R को हम नीचे लेकर आ जाए, चाहे इसको हम ऊपर लेकर चले जाए हम, तो हम क्या ले सकते हैं V RMS RC बाई L, ठीक है। तो हम इसको हम नीचे लेकर चले जाए तो V बाई RMS, तो अब क्या होगा I at resonance, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू V RMS अपॉन Z max, दिस इज योर मैक्स Z max, और ये हमारा करंट क्या हो जाएगा, पैरेलल रेजोनेंस में हमारे करंट की वैल्यू आती है मिनिमम, ठीक है। और इस Z max, तो Z max को हम क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, L बाई आर सी, इसको बोलते हैं L बाई आर सी, ठीक है। ये आपका ओम ही होगा, और इसको बोलते हैं डायनेमिक इम्पिडेंस, पूछा जाता है डायनेमिक इम्पिडेंस, हमेशा याद रखिएगा, दिस इज डायनेमिक इम्पिडेंस Z max, यानी कि पैरेलल में आपको पहले ही मालूम है कि कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि पैरेलल जब भी हमारा रेजोनेंस होगा, पैरेलल रेजोनेंस के केस में हमारे को क्या मिलता है, हमारे को मिलता है VRMS अपॉन Z max, सो Z max इज इक्वल टू V बाई I लिख सकते हैं हम। तो हमारे को क्या मैं बता रहा था, यस मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बात करते हैं पैरेलल सर्किट की और पैरेलल रेजोनेंस की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपकी करंट की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, ठीक है, इम्पिडेंस की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम हो जाती है। अगर हम सीरीज रेजोनेंस की बात करें तो इम्पिडेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाती है और करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, हमेशा रखिएगा। सो आई मिनिमम, हमारा आई मिनिमम आ गया, ठीक है, और हमारा मैक्स जेड जो हो गया हमारा मैक्सिमम हो गया। सो दिस इज योर डायनेमिक इम्पिडेंस। ये इस रिलेशन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में, ये इसमें हमेशा, तो हमेशा याद रखिएगा। अब हम इसी सर्किट को हम रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं, यानी कि रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। अब प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट, पैरेलल RLC को हम बोलते हैं कि ये हमारा रिजेक्टर सर्किट है। अब इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और रिजेक्टर से कहते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ये रिजेक्ट कर देता है, इसीलिए हम रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट जो एनालिसिस है वो हमें देखना है। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा करंट क्या हो गया, मिनिमम हो गया, और करंट अगर मिनिमम हो गया तो करंट ये हमारा मिनिमम चला गया, यानी कि हमारे करंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, सो दिस इज I मीन, और इसकी वैल्यू कितनी है V RMS बाई L बाई RC, ये तो है L बाई RC, V RMS बाई RC, ये हमारा क्या आ गया, मिनिमम आ गया, ठीक है। और इम्पिडेंस हमारा, और ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, दिस इज आवर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इसी पॉइंट पर हमारा Z क्या हो गया, Z इज मैक्सिमम, तो हम क्या लिखेंगे, Z इज आवर मैक्सिमम, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ गया Z का, ठीक। तो Z मैक्सिमम वैल्यू में कितनी होगी, तो L बाई RC, एंड दिस इज आवर Z मैक्स। तो ये ग्राफ आप हमेशा याद रखिएगा, और यहाँ से यहाँ तक आप कौन से सर्किट हो गया, यहाँ से यूज करेंगे तो दिस विल बी इंडक्टिव, और यहाँ से उधर यूज करेंगे तो दैट विल बी कैपेसिटिव। इसके बारे में हम प्रॉब्लम के साथ हम आपको डिस्कस करेंगे, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव को, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे को यहाँ पर तो मिनिमम मिल गया, मिनिमम करंट, और यहाँ पर हमारे को इम्पिडेंस जो मिल गई आपको वो मैक्सिमम मिल गई, राइट, फाइन। दिस इज ऑल अबाउट योर पैरेलल RLC सर्किट, इसको हमेशा याद रखिएगा, इतने ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ तो ही आएगा ओमेगा L बाई आर, बैंडविड्थ की अगर बात करेंगे तो बैंडविड्थ इज ओमेगा L बाई आर, ठीक है। इसको भी हम आपको बता देंगे, ओमेगा L बाई आर याद रखिएगा। वैसे कि बैंडविड्थ जो आएगी हमारी, ओ सॉरी बैंडविड्थ कह रहा हूँ मैं, क्वालिटी फैक्टर, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, जो क्वालिटी फैक्टर हमारी आएगी दैट इज इक्वल टू ओमेगा L बाई आर आएगी, ठीक है। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो आपको मैं डिस्कस कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, बट याद रखिएगा क्वालिटी फैक्टर इज ओमेगा L बाई आर। नाउ अब हम अगर बात करते हैं थोड़ा सा, अब हम आगे थोड़ा सा अगर मूव करें, ठीक, तो ये हमारी सर्किट पूरी कंप्लीट होगी, ठीक है। एक थोड़ा सा और आपका 2 मिनट में लूंगा, और उस 2 मिनट बाद मैं लेक्चर अपना फिनिश करूंगा, क्योंकि मुझे ये
बताना था, ये बताना था, ये बताना था, और इसकी मुझे फेजर डायग्राम की एनालिसिस करनी थी। किसी भी रेजोनेंट सर्किट में आप इमेजिनरी पार्ट के करंट को आप जीरो कर दो, दैट इज रिएक्टिव पार्ट के करंट को आप जीरो कर दो, आपका रेजोनेंस आ जाएगा। वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में। तो हमारे रेजोनेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि V and I both are in same phase. That is the important thing. V and I are in same phase for resonance. ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर मान लिया जाए कि आपको कैलकुलेट ही करना हो तो एक ऑल्टरनेटिवली मैं और आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताता हूँ, उसको आप याद रखिएगा। जैसे आपके पास दो पैरेलल ब्रांचेस थी, तो हम एडमिटेंस निकाल लेंगे। यहाँ पर नेट एडमिटेंस कितनी हो जाएगी हमारी, वाई आर प्लस जे ओमेगा एल की, है ना, वाई वाई एल एंड प्लस वाई सी, जो हमारी सर्किट थी। सॉरी, दिस इज ऑल्टरनेट मेथड, ऑल्टरनेट मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे हम, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/r प्लस जे ओमेगा एल, एंड दिस इज 1 by जे ओमेगा सी। सो हम लिखेंगे 1/r प्लस जे ओमेगा एल एंड प्लस जे ओमेगा सी, और इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे G प्लस माइनस बी, यानी कि कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस के फॉर्म में, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस के फॉर्म में। और रेजोनेंस कंडीशन में क्या करेंगे, एट रेजोनेंस क्या होगा, एट रेजोनेंस हम B को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो हमारा रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो हम एडमिटेंस के भी हेल्प से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसको भी याद रखिएगा। एडमिटेंस की हेल्प से भी हम B को हम 0 कर देंगे, एंड ससेप्टेंस, दिस इज कॉल्ड ससेप्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। एडमिटेंस के लिए दिस इज एडमिटेंस। Fine. So that's all for today, and then after I'll solve few numerical problems, so everything will be crystal clear. But my main motive was to analyze the phasor diagram method for the phenomena of resonance. With the help of phasor diagram, we can implement this method to find resonant frequency, resonant condition for any type of circuit. Reactive part of the current is 0, voltage and I are in same phase. Fine. So thank you very much.